آج اتوار ہے اور نومبر کی 30 تاریخ. ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری. سری لنکا میں سیلاب اور بارشوں سے 159 افراد ہلاک. پاکستان اور انڈیا کا امدادی سامان اور ریسکیو ٹیمیں بھجوانے کا اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کی فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ. وینزویلا کا کہنا ہے کہ یہ ہماری عوام کے خلاف غیر قانونی اور بلا جواز جارحیت ہے. خان یونس ڈرون حملے میں 2 بچے ہلاک. غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 70,000 سے تجاوز. پاکستان غزہ امن فورس کے لیے فوجی بھجوانے کو تیار. حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں شامل نہیں ہوگا. S-400 اور سخوئی 57 طیاروں کے معاہدے. 4 برس بعد پیوتن کا دورہ انڈیا, جس پر ہیں امریکہ کی نظریں. چابی کے بغیر چلنے والی گاڑیاں خطرے میں. انٹرنیٹ سے خریدے گئے آلات سے چوری آسان. پیدائشی طور پر بحری 12 سالہ لائس پہلی بار ماں کی آواز سنتے ہوئے جذباتی. ویڈیو وائرل. تیسری دنیا کے شہریوں کی امریکہ داخلے پر پابندی. جانیے تیسری دنیا کی اصطلاح کن ممالک کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے ماہواری کے خون کا استعمال کرنے کا ٹرینڈ اور ڈاکٹروں کے خدشات. اس کے علاوہ وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات بھی آج کے سیربین میں شامل رہے گا, مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. سری لنکا میں طوفان دتوا کے نتیجے میں ہونے والی بارشوں اور سیلاب سے متعلقہ واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 159 ہو گئی ہے, جبکہ 200 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں. سری لنکا کو حالیہ برسوں میں پیش آنے والے بدترین موسمی آفات میں سے ایک کا سامنا ہے اور حکومت نے ہنگامی حالات کا اعلان کر رکھا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس موسمی آفت سے 2,34,000 سے زائد خاندان متاثر ہوئے ہیں. سری لنکن حکام کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں 15,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں, جبکہ 78,000 افراد عارضی پناہ گاہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں. حکام کا مزید کہنا ہے کہ ملک کا تقریباً 1/3 حصہ بجلی یا صاف پانی کی فراہمی سے محروم ہے. پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کا آغاز اتوار کے روز سے کیا جا رہا ہے. پاکستان کے سرکاری میڈیا APP نے NDMA کے حوالے سے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 100 ٹن امدادی سامان کی کھیپ روانہ کی جا رہی ہے, جبکہ آرمی سرچ ریسکیو ٹیم بھیجنے کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. دوسری جانب بھارت نے بھی امدادی سامان کی کھیپ سری لنکا روانہ کر دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا کی فضائی حدود بند کرنے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے وینزویلا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا بیان وینزویلا کی عوام کے خلاف ایک اور غیر قانونی اور بلا جواز جارحیت ہے. سنیچر کے روز امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری ایک بیان میں کہا, تمام ایئر لائنز, پائلٹس, منشیات فروش اور انسانی سمگلروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ وینزویلا اور اس کے آس پاس کی فضائی حدود کو پوری طرح سے بند سمجھیں. اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ. وائٹ ہاؤس نے اس متعلق BBC کی جانب سے تبصرے کی درخواست کا تاحال جواب نہیں دیا ہے. امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وینزویلا کی وزارت خارجہ نے صدر ٹرمپ کے بیان کو اپنے ملک کی عوام کے خلاف ایک اور غیر قانونی اور بلا جواز جارحیت قرار دیا ہے. قانونی طور پر امریکہ کے پاس کسی دوسرے ملک کی فضائی حدود بند کرنے کا اختیار نہیں, تاہم امریکی صدر کے اس بیان سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور ایئر لائنز کو وہاں کام کرنے سے روک سکتی ہے. یاد رہے کہ امریکہ کیریبین میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے. امریکی حکام کے مطابق اس کا مقصد منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام ہے, تاہم وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے منشیات کی سمگلنگ کے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ محض انہیں اقتدار سے ہٹانے کی ایک سازش ہے.
हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वजारत सेहत का कहना है कि गजा में इसराइल की फौजी मुहिम के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 10 अक्टूबर को गजा में जंग बंदी के निफाज के बाद भी इसराइली हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसराइल का कहना है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में वो ये फिजाई हमले कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ मलबे के नीचे दबी लाशें निकालने का काम भी जारी है। शनिचर के रोज़ मुबैना तौर पर इसराइली ड्रोन हमले में हलाक होने वालों में 2 बच्चे फादी और जुमा अबू आसी भी शामिल हैं। दोनों भाइयों के अहल खाना का कहना है कि जब वो मारे गए तो वो दोनों लकड़ियां जमा कर रहे थे। इसराइली फौज ने BBC को बताया कि उन्होंने 2 मुश्तबा अफराद को निशाना बनाया, जिन्होंने गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत खींची गई पीली लकीर को अबूर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमले में मारे जाने वाले लड़कों में से एक की उम्र 8 साल जबकि दूसरे की 10 साल थी। लवाहिकीन ने बताया कि बच्चे जनूबी गजा की पट्टी में खान यूनस के मशरिक में लकड़ियां ढूंढ रहे थे जब वो इसराइली हमले में मारे गए। दोनों भाइयों की आखिरी रसूमात नसर हस्पताल में अदा कर दी गईं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि गजा में क़याम अमन के लिए मुजव्वज़ा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF में शिरकत के लिए पाकिस्तान अपने फौजी भिजवाने के लिए तैयार है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने के काम में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया APP के मुताबिक शनिचर के रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि गजा में अमन फ़ौज की तैनाती के मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मंजूरी हासिल होनी चाहिए। गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से ISF के किरदार के बारे में उन्होंने वाज़े किया कि दीगर अहम ममालिक की तरह पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार नहीं। एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डीवेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये जो है वो हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। तो हम अपनी फोर्स जरूर देने के लिए तैयार हैं। इसहाक डार का कहना था कि मलेशिया को भी ISF के हमास को गैर मुसल्लह करने के मुजव्वज़ा किरदार पर एतराज़ है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि पाकिस्तान गजा अमन फोर्स में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है, ताहम इससे पहले इसके TORs, मैंडेट और किरदार का वाज़े तौर पर फैसला होना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक इन अवामिल के बारे में तय नहीं कर लिया जाता पाकिस्तान इस मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं ले सकता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इंडिया पहुंच रहे हैं। सन 2021 के बाद ये उनका पहला इंडिया का दौरा है, जहां वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदों खसूसन रूसी S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और जदीद सुखोई 57 लड़ाका हथियारों पर अहम बातचीत मुतवक्के है। तवानाई, जोहरी ताउन और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी मुज़ाकरात होंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये दौरा इंडिया की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के मजबूत होने की तरफ एक इशारा है, जबकि अमेरिका इस पेश रफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात तिजारती पाबंदियों के बाइस कशीदा हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया इस दौरे को एक अहम और फैसला कुन मोड़ करार दे रहे हैं, जिससे इंडिया और रूस के ताल्लुकात नई समत अख्तियार कर सकते हैं और आलमी सफारतकारी में अहम असरात मुरतब हो सकते हैं। BBC की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि जराइम पेशा अफराद अब घरों में दाखिल हुए बगैर गाड़ियां चोरी करने का नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट से हज़ारों डॉलर में ख़रीदा जाने वाला खसूसी आला गाड़ी के सिग्नल्स को हैक करके बगैर चाबी के कार स्टार्ट करने की सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक ये आलात असल में मैकेनिक और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाए जाते हैं, मगर इन्हें गैर कानूनी तौर पर ख़रीदा और इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नए तरीके ने चोरी की वारदातों में इजाफा कर दिया है, जबकि गाड़ी मालकान को इस खतरे का इल्म तक नहीं। मज़ीद तफसीलात हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में। चाबी के बगैर चलने वाली गाड़ियों की चोरी में इस्तेमाल होने वाले आलात हज़ारों डॉलर्स में ऑनलाइन फरोख्त किए जा रहे हैं।
चोर ऑनलाइन फरोख्त होने वाले आलात की मदद से घरों के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चाबियों के सिग्नल पकड़ लेते हैं, जिससे वो जदीद गाड़ियों को बगैर कोई ताला तोड़े या ज़बरदस्ती दाखिल हुए खोल लेते हैं। BBC ने ऐसी कीमतों की फहरिस्तें और वीडियोस देखी हैं जिनमें दावा किया गया है कि ये आलात लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों को खोल लेते हैं और ये गैजेट $27,000 तक फरोख्त हो रहे हैं। It took them 2 minutes in total to arrive. उन्हें वहां पहुंचने, गाड़ी को देखने, सिग्नल हासिल करने और वापस जाने में सिर्फ 2 मिनट लगे। अक्सर लोग अपनी चाबियां दरवाजे के पास, किचन या किसी कोने पर रख देते हैं। ये आला इस सिग्नल को पकड़कर इसे गाड़ी के पास मौजूद किट के दूसरे हिस्से तक पहुंचा देता है और बस चंद सेकंड में गाड़ी खुल जाती है। ताहम माहिरीन कहते हैं कि कुछ एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं। ये एक फेराडे पाउच है जिसके अंदर बुनियादी तौर पर एक धाती जाली होती है। आप अपनी चाबी इस पाउच में रख देते हैं और फिर रिले अटैक में इस्तेमाल होने वाला इस चाबी का सिग्नल हासिल नहीं कर पाता। सिग्नल मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाता है। ब्राज़ील में 12 साला लाइस ने पैदाइशी तौर पर समात ना होने के बाद पहली बार अपनी मां की आवाज़ सुनी और इस लम्हे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लाइस की सर्जरी के बाद ये जज्बाती लम्हा दोनों के लिए इंतहाई खुशी और हैरत से भरपूर था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मां और बेटी के जज्बाती रद्द-ए-अमल ने हर देखने वाले को मुतासिर किया। इस दौरान लाइस ने बताया कि उसकी पसंदीदा आवाज़ मां की मोहब्बत भरी आवाज़ है। Tá escutando? Tá? Não. Ó, baixinho. Tá baixinho? Você quer que eu aumente? Como é que tá agora? Tá baixinho ainda? O som que você ouviu, que você mais gostou? Diz que é da água, porque ela só fala na história da água, porque ela tem vontade de escutar o barulho do mar. Tá ouvindo, mamãe? Laís. 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 Ela passou esses anos todos com o celular no modo silencioso, né? Aí agora, ela chegou em casa, a alegria dela foi quando ela botou que é os videozinhos dela de TikTok, essas coisas. Botou, o olhinho dela chega a brilhar, via assim. Que incomoda você? Qual é? Muito barulho na escola, ela diz. Entendi. Muita gente falando ao mesmo tempo. E É porque anos sem ouvir. carro, motor, não? Ó, da moto. Você gosta? Obrigado. बुध को वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के करीब होने वाले हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तीसरी दुनिया के ममालिक के शहरियों के अमेरिका आने पर मुस्तकिल पाबंदी लगाएंगे। ताहम सदर ट्रंप ने ये नहीं बताया कि तीसरी दुनिया में कौन से ममालिक शामिल हैं या उनके ऐलान का इतलाक किन ममालिक पर होगा। इससे ये सवाल पैदा होता है कि तीसरी दुनिया क्या है और इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। क्या पाकिस्तान या इंडिया भी इस फहरिस्त में मौजूद है? तीसरी दुनिया की कोई वाज़ेह जुगराफियाई या लफ्ज़ी तारीफ नहीं है। ये इस्तिलाह आम तौर पर गरीब और पसमानदा ममालिक के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इस्तिलाह ख़ास तौर पर 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में मकबूल हुई, जब दुनिया के बहुत से ममालिक यूरोपी नौ आबादियात से आज़ाद हो रहे थे। तीसरी दुनिया की इस्तिलाह आलमी सनती ममालिक को जोड़ने वाले मुआशी और सियासी ताल्लुकात से बाहर की कौमों को बयान करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, जिनमें से अक्सर साबिक यूरोपी कॉलोनियाँ थी। ताहम तीसरी दुनिया की इस्तिलाह असल में उन ममालिक के लिए इस्तेमाल की गई थी जो सर्द जंग के दौरान ना तो मगरबी सरमायादाराना ब्लॉक और ना ही सोवियत कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थे। एक तरफ अमेरिका की क़यादत में पहली दुनिया थी, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की क़यादत में दूसरी दुनिया थी। एक तीसरी दुनिया भी उभर रही थी जो इन दोनों के दायराकार से बाहर थी। ताहम बाद में तीसरी दुनिया की इस्तिलाह उन ममालिक के लिए इस्तेमाल की गई जो गरीब, तरक्की में पसमानदा या तरक्की पजीर थे। तीसरी दुनिया की इस्तिलाह सबसे पहले फ्रांसीसी डेमोग्राफर अल्फ्रेड सोवी ने 1952 में इस्तेमाल की।
एक मजमून में उसने लिखा कि ये तीसरी दुनिया नज़रअंदाज, हकीर, इस्तेहसाल का शिकार और थर्ड स्टेट की तरह कुछ बनना चाहती है। डेमोग्राफर और माहिर इक्तिसादियात एल्फ्रेड सोवी ने पहली बार तीसरी दुनिया की इस्तिलाह थर्ड स्टेट किसानों, मजदूरों, आम लोगों के लिए इस्तेमाल की, जो फर्स्ट स्टेट पादरी और सेकंड स्टेट अशराफिया के इस्तेहसाल का शिकार और महरूम तबका थे। एक तरह से उन्होंने इस्तेहसाल ज़दा और महरूम ममालिक के लिए तीसरी दुनिया की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी। ताहम तीसरी दुनिया के ममालिक की तारीफ और समझ आज बदल चुकी है। तीसरी दुनिया की इस्तिलाह अब सियासी और इक्तिसादी हवाले से शाज़ व नादर ही इस्तेमाल होती है। अब ऐसे ममालिक के लिए ग्लोबल साउथ या तरक्की पजीर ममालिक या कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक जैसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलहाल किसी भी मुल्क के लिए तीसरी दुनिया की इस्तिलाह का इस्तेमाल तौहीन आमेज समझा जाता है। सोशल मीडिया पर एक और नया और मुतनाज़ा रुझान तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ख़वातीन अपनी माहवारी के खून को चेहरे पर लगाएं तो जिल्द चमकदार हो जाती है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बैरून मुल्क चंद अफराद ने इस ख्याल को फ़रोग़ दिया और अब एशिया में भी बाज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसी राह पर चल पड़े हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स इस अमल को मेंस्ट्रुअल मास्किंग का नाम दे रहे हैं। माहिरीन जिल्द ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश कुमार के मुताबिक माहवारी का खून जिल्द पर लगाना ना तो महफूज है और ना ही इसके कोई साइंसी फ़वाइद साबित हैं। उनका कहना है कि इस खून में जरासीम की मौजूदगी का ज़्यादा इम्कान होता है, जो चेहरे पर जलन, इन्फेक्शन और सोजिश का बाइस बन सकता है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक माहवारी का खून बुनियादी तौर पर जिस्म का फुजला होता है, जिसमें मुर्दा बाफ्तें, बैक्टीरिया और मुख्तलिफ रतूबतें शामिल होती हैं। इसे जिल्द पर लगाने से फ़ायदे की बजाय नुकसान का ख़तरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि सेहतमंद जिल्द के लिए बाकायदा क्लिनसर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और मुनासिब नींद व ग़िज़ा पर तवज्जो दी जाए, जबकि गैर साबित शुदा सोशल मीडिया ट्रेंड से दूर रहना ही बेहतर है। और सामीन, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर पेश है वुसअत उल्लाह खान का कॉलम बात से बात, जो नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है। जब 70 के अशरे में माओ ज़ेतुंग के तत्हीरी सकाफती इनकलाब की सख्त ज़मीन से डेंग ज़ियाओबैंग का ये नारा फूटा कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं, और फिर चीनी कम्युनिज़म के बाजू में थोड़ी सी सरमायादारी का इंजेक्शन लगाते हुए ये दिलासा दिया गया कि बिल्ली स्याह है कि सफ़ेद, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो चूहे पकड़ रही है। तिस पे दाएं बाजू के दोस्तों ने बाएं बाजू के चीन नवाज़ों से ये बदतमीज़ी शुरू कर दी कि कॉमरेड, क्या अब भी तुम तरमीम पसंदी मुर्दाबाद, माओइज़्म जिंदाबाद का नारा लगाते रहोगे? जब गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन में प्रस्त्राइका और ग्लासनोस्ट का अलम उठाया और 70 बरस बाद निजी मिल्कियत का सूअर हलाल करार दे दिया, तो दाएं बाजू के दोस्तों ने मॉस्को नवाज़ों पे रकीकियत शुरू कर दी। कॉमरेड, क्या अब भी मॉस्को में सर्दी पड़ी तो तुम कराची में ओवरकोट पहन लोगे? मेरे कई बुनियाद परस्त कम्युनिस्ट सोशलिस्ट दोस्त तो चीन के बिदत पने और सोवियत यूनियन टूटने से इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि कुछ NGO सेक्टर में चले गए, कुछ तबलीगी हो गए, बहुत से कोना पकड़ के बैठ गए, और कार्ल मार्क्स का ये तज्जिया भी जहन से खुरज दिया कि हर निज़ाम का तज़ाद उसी निज़ाम के अंदर से उभरता है। दाएं बाजू के दोस्तों ने चीन में आने वाली गहरी तब्दीलियों और सोवियत यूनियन के ख़ात्मे को पहले तो मकाफ़ात अमल समझा और फिर ये यकीन कर लिया कि बीजिंग और मॉस्को के बाद अब वाशिंगटन की बारी है। पहले कम्युनिज़म मुर्दाबाद, अब लिबरलिज़म सेकुलरिज़म मुर्दाबाद, खालिस इस्लाम जिंदाबाद। और खालिस इस्लाम की मिसाल में सऊदी रियासत को पेश किया गया। क़वानीन अगर वही हो जाएं जैसे सऊदी अरब में हैं तो पाकिस्तान भी उन्हीं फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हो जाएगा। चुनाचे ज़ियाउल हक़ ने सऊदी उलमा के मशवरे से वो कानून साजी की जिसके समरात आज हर तरफ लहलहा रहे हैं। खूबसूरत मसाजिद, कसीर मंजिला मदारिस, इन मदारिस से निकलने वाले सऊदी नज़रियाती मुतासरीन के लिए फ़ंडिंग, स्कॉलरशिप्स, हम ख़याल उलमा कराम पे नवाजिशात और इनामात की बारिश, हज व उम्रे के कोटे, हर फ़ौजी और सिविलियन हुक्मरान की रियाज की चौखट पे हाज़री,
ہر درخواست حکم کا درجہ، یہ لیجئے فوجی دستے، یہ لیجئے مزدور، یہ لیجئے ناپسندیدہ لوگ، آپ ہمارے نظریاتی اور روحانی مرشد، ہم آپ کے جان نثار۔ کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ڈھیلا نکال کے ہاتھ پہ نہ دھر دیں گے۔ سعودی اسلام زندہ باد، لبرل سیکولر فاشسٹو پاکستان چھوڑ دو اور مغربی آقاؤں کے تلوے چاٹو۔ پھر ایک دن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان نامی دینگ ژیاؤ بینگ اور میخائیل گورباچوف کا جنم ہوا اور گلاسناسٹ و پریسترائکا کا بھوت سعودی ویژن 2030 کے نام سے سامنے آ گیا۔ کہاں ملکہ برطانیہ کو بھی بادشاہ سے ملاقات کے لیے حجاب اور گاؤن پہننا پڑتا تھا، اور کہاں مسز ڈونلڈ ٹرمپ اور صاحبزادی ایوانکا خادم حرمین کے آگے سے بال جھٹکتے ہوئے گزر گئیں۔ پچھلے ایک برس میں کوئی مہینہ نہیں جاتا کہ سعودی عرب سے سر چکرا دینے والی خبر نہ آتی ہو۔ کہاں عورتوں کی ڈرائیونگ سے کنوار پنے کو خطرہ بتایا جاتا تھا، اور کہاں اب عورتیں کار چھوڑ موٹر سائیکل اور ٹرک چلا سکتی ہیں، اسٹیڈیم میں میچ دیکھ سکتی ہیں۔ فتویٰ ہو گیا ہے کہ عبایا پہننا ضروری نہیں، بس معقول حجاب کافی ہے۔ خواتین بیشتر شعبوں میں ملازمت کر سکتی ہیں۔ ریاض میں پہلے اوپرا ہاؤس کی تعمیر شروع۔ مارچ میں پہلا عرب فیشن ویک ریاض میں منعقد ہوگا۔ سعودی فلم سازوں کو اب ملک کے اندر فلمیں بنانے کی اجازت۔ انٹرٹینمنٹ پہ اگلے 10 برس میں 64 ارب ڈالر خرچ ہوں گے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے بقول ہماری 70% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے سعودی عرب پھر سے ایسا اعتدال پسند ملک بن جائے جس میں تمام مذاہب، ثقافتوں اور لوگوں کے لیے راہیں کھلی ہوں۔ میں نے روس اور چین کو مکافات عمل سے گزارنے والے 4 جید دوستوں کو فون کیا، 3 نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ چوتھے نے کہا، یہ سعودی عرب کا اندرونی معاملہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ کیلیفورنیا میں ایک بچے کی سالگرہ کی تقریب میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریاست کے شمالی شہر سٹاکٹن میں سنیچر کی شام ایک ریستوران میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں 10 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ایک مشتبہ شخص تاحال فرار ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں یہ ایک ٹارگیٹڈ کارروائی ہو سکتی ہے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں بڑے اور بچے شامل ہیں، تاہم ابھی تک زخمیوں کی حالت کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور اس بارے میں فی الحال زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔